Good morning, dear learners. This is your academic counselor for English, Mr. Shubhamoy Banerjee. And since we have not met for a very long time, I thought of preparing a video for all of you, especially those who are very keen on doing their IGNOU classes. We are not able to have our classes as of now because of the lockdown. So this is a short video through which I have tried to give you some idea about how to attempt your questions during your term end examination. This particular question paper is taken from the program code BEGE 105, and I have taken a sample question paper from the year 2014, and I have tried to discuss only one question from it to give you a rough idea about how to write your answers in this particular paper. So just have a look, and I hope it will be of some help to you, especially the new learners or the ones who have never attended the classes. If you just have a look at the way it is supposed to be done, I'm sure you will get some idea. So please watch. Here it is. So my dear learners of IGNOU Study Center 2821, St. James School, Binaguri, this is your academic counselor Shubhamoy Banerjee, and today, just for an example, I would like to discuss with you your program code BEGE 105, or as it was known earlier, EEG 05. In this we have understanding prose. It is elective course in English, and we are going to see that in this bachelor's degree program, particularly for this paper, what type of questions we generally get in our term end examination. Now I have, for an example, though we are now in the year 2020, I have taken the example of a question paper from the year 2014. So let us look at the question paper and try to understand what the format of the questions are, what is the question paper like in its appearance, and what are the kind of questions or the kinds of questions we get. So let's take a quick look at the question paper, and then I would like to discuss any one question with you. आप लोगों से मैं एक ही क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में. तो सबसे पहले हम देखते हैं बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2014 इलेक्टिव कोर्स इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग प्रोज का. देखिए इसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिए. देखिए इसमें लिखा है 3 आवर्स पेपर और 100 मार्क्स, फुल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 100. इसमें आपसे कहा गया है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस. All questions carry equal marks. Your answers should be in approximately 400 words each, unless stated otherwise. तो कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है. हर क्वेश्चन में इक्वल मार्क्स रखा गया है और हर एक सवाल का जवाब आपको 400 शब्दों में देना है, यानी कि 400 वर्ड्स में लिखना है. अगर आपको अलग से कहा गया है कि आपको कुछ वर्ड लिमिट में कम या ज़्यादा किया जा सकता है तो अलग बात है, नहीं तो 400 वर्ड्स जो है आपका वर्ड लिमिट है. तो क्वेश्चन पेपर को देखते हैं. पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग. इसमें 2 लिखना है, इसलिए 200 प्लस 200 वर्ड्स है. 2 इंटू 10 20 मार्क्स है. देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं. अलंकार, साहित्य में अलंकार का इस्तेमाल हुआ करता है हमेशा. तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है इसके बारे में लिखना है. अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो 200 वर्ड्स में लिखना है. बी पार्ट में दिया है टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, जो उपन्यास इंग्लिश में
जो भी है उसके बारे में लिखना है, कितने किस्म के होते हैं, क्या होते हैं, तो 200 वर्ड्स। सी पार्ट में दिया ऑटोबायोग्राफी एज ए जेनरे, डी में है प्लॉट एंड स्टोरी, ई में है इमेज एंड सिंबल। तो ये जो है इसमें 5 ABCDE 5 पार्ट्स हैं, लेकिन आपको किन्हीं 2 का उत्तर देना है। आपको सारे जो 5 है तो इन सारे सवालों का जवाब नहीं लिखना है। यू हैव टू चूज एनी 2। फिर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज पे है, इसमें 20 मार्क्स है, लेकिन इसमें चॉइस है और दिया गया है मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज एज ए ट्रेजेडी। फिर देखिए सेकेंड पेज पे चले जाते हैं, ए टाइगर फॉर मालगुडी इज रेप्लीट विथ सटायर, आयरनी एंड ह्यूमर। 3 चीज़ों के बारे में आपको चर्चा करना है। सटायर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, आयरनी किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए, और ह्यूमर। तो इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह से इस कहानी में किया गया है इसके बारे में आपको लिखना है। 20 मार्क्स। याद रहे इन सब सवालों का जवाब आपको 400 वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि ये 20 मार्क्स क्वेश्चन है। फिर देखिए और क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिया गया है। इस तरह से कुल मिला के आपको इसमें जो है 7 सवाल पूछा गया है। सातवां सवाल में कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे सवालों में आपके लिए ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए इनका जवाब लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन हम चुन लेते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें दिया है एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है, आफ्टर 20 ईयर्स, जिस कहानी का लेखक है ओ हेनरी। और इस कहानी में सवाल जो आपको पूछा गया है, जिमी वेल्स इज ए कंपैशनेट फ्रेंड एंड ए डेडिकेटेड पुलिसमैन, डिस्कस दिस विथ रेफरेंस टू ओ हेनरी स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स। तो इसमें जो आपका जवाब जो आपको लिखना है, इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है कि एक तो आपको जिमी वेल्स जो कैरेक्टर है, जो एक पुलिसमैन का कैरेक्टर है, उनको आपको वो एज ए कंपैशनेट फ्रेंड ये दिखाना है और साबित करना है कि क्यों वो कंपैशनेट फ्रेंड थे। और दूसरी तरफ क्योंकि वो प्रोफेशनली एक पुलिसमैन हुआ करते थे, एक पुलिस में नौकरी करते थे, तो इसलिए वो डेडिकेटेड पुलिसमैन किस तरह से थे, यानी कि उनका जो ड्यूटी था एज ए पुलिसमैन वो किस तरह से निभाते थे उसके बारे में भी आपको लिखना है। यानी कि 400 वर्ड्स का आपका ये जवाब होगा सवाल का, लेकिन इसमें आपको ये दोनों चीज़ जो है इसको आपको हाईलाइट करना है। और जब आप ये करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 200 वर्ड्स आप हर एक पॉइंट के बारे में आप डेडिकेट करोगे। यानी कि कंपैशनेट फ्रेंड जिमी वेल्स एज ए कंपैशनेट फ्रेंड जब आप लिखोगे तो उसमें आप 200 वर्ड्स उसमें आप डेडिकेट करोगे, और दूसरी तरफ जब वो डेडिकेटेड पुलिसमैन के बारे में लिखोगे उसमें भी आप 200 वर्ड्स लिखोगे। तो आपका जो है सवाल कंप्लीट, सवाल का जवाब आपका तैयार हो जाएगा। तो ये जो कहानी था, इन दिस स्टोरी जिमी वेल्स ही इज ए पुलिसमैन एंड 20 ईयर्स पहले, 20 साल पहले, इसका जो है अपना जो एक बहुत ही करीबी दोस्त था उससे इसका एक एग्रीमेंट होता है। They agree that they will separate and they will go in different directions and see if they can achieve any success in life. And that's what they do. They go away leaving each other for 20 years, and after 20 years it was decided actually when they left each other कि after exactly 20 years they would be meeting at the same spot from where they were separating exactly at the same time but exactly after 20 years. तो 20 साल बाद जब वो आते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ जो है एक सस्पेंस बना रहता है, क्योंकि जिमी वेल्स जो है वो पुलिसमैन है, तो पुलिस में नौकरी करता है, तो ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पुलिसमैन एंड ही इज़ मेकिंग हिज राउंड्स इन दैट एरिया. And at that moment there is this gentleman who comes up, and this gentleman looks to be very rich, and he comes and he lights a cigar. He asks for a light from Jimmy Wells, which he provides, but in the brightness of the flame of the matchstick he can recognize his friend. He realizes that his friend
इज नाउ कुख्यात अपराधी सिल्की बॉब। तो सिल्की बॉब को पकड़ने के लिए जो है हुलिया जारी है। और नेचुरली जिमी वेल्स क्या करता है, वो अपना जो परिचय है वो देता नहीं है। उसको पता चल जाता है कि ये सिल्की बॉब है, जबकि ये उसका उसका खास दोस्त भी था एक ज़माने में। तो वो क्या करता है, वो अपना पुलिस स्टेशन वापस जाता है और वहाँ से किसी और को भेजता है जो आके सिल्की बॉब को अरेस्ट करता है और ले जाता है थाने में। तब उसको एक चिट्ठी दिया जाता है और उस चिट्ठी में इस बात का जिक्र होता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया था और मैं सही वक्त पे सही जगह पे आया भी था, लेकिन जब मैंने तुमको देखा तब मुझे अपना ड्यूटी का याद आया कि मैं अपना दोस्ती ज़रूर निभाया, लेकिन साथ 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 मैंने अपना ड्यूटी भी निभाया, क्योंकि एक पुलिसमैन होने के नाते ये मेरा ड्यूटी था कि मैं तुमको अरेस्ट करूं। तो मैं खुद अपने हाथों से तुमको अरेस्ट नहीं किया, इसीलिए मैंने किसी और को भेज दिया कि वो तुम्हें अरेस्ट करे। तो ये जो कहानी था, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 20 साल पहले का एक अंडरस्टैंडिंग दो दोस्तों के बीच, और 20 साल बाद दोस्ती दोनों निभाते हैं, दोनों पहुंचते हैं सही जगह पे, मिलते हैं एक दूसरे से। लेकिन सिल्की बॉब को जिमी वेल्स अपना परिचय, अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं देता है और उसको पकड़वा देता है, क्योंकि ये उसका ड्यूटी बनता है एज ए पुलिसमैन कि जो अपराधी है अपराधी को पकड़े। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डिस्कस व्हेन यू राइट द आंसर। मेक श्योर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू टॉक अबाउट द कंपैशनेट फ्रेंडशिप बिटवीन द टू फ्रेंड्स। किस तरह से ये लोग लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे थे और तब ये दोनों एक दिन तय किया कि हम अलग अलग दिशा में जाएंगे और ज़िंदगी में कोशिशें करेंगे, और फिर 20 साल बाद आके फिर से इसी जगह पे मिलेंगे। और फिर वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और 20 साल बीत जाता है और 20 साल के बाद ये लोग फिर मिलते हैं। तब एक बनता है अपराधी, एक बन चुका होता है अपराधी और दूसरा जो है पुलिसमैन। तो नेचुरली पुलिसमैन अपना ड्यूटी निभाता है। तो कुछ हद तक ये कहानी जो है ये एक वर्ल्ड फेमस कहानी है, और ओ हेनरी, जिनका ओरिजिनल नाम था विलियम सिडनी पोर्टर, उन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो आपको जो करना है, पहले तो आपको ये कहानी जो शॉर्ट स्टोरी, ये एक स्टोरी है, ये एक्चुअली एक नॉवेल नहीं है, ये स्टोरी है। इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से शुरू से अंत तक आप इसको पढ़िए, टेक्स्ट को पढ़िए। किसी भी कहानी, किसी भी सवाल का जवाब लिखने के लिए पहले तो कहानी को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है। सो रीड द स्टोरी, एंड आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाइल यू रीड, और आफ्टर यू फिनिश रीडिंग ट्राई टू थिंक कि ये जो कहानी है इसमें कंपैशनेट फ्रेंड, जिमी वेल्स एज ए फ्रेंड, वो कितना हद तक वो सच है, और ड्यूटी निभाने वाला पुलिसमैन के हिसाब से भी वो कितना हद तक अपना ड्यूटी निभाता है। तो ये दोनों चीज़ जो है आपको आपका जो ये आंसर बनेगा उसमें आपको अच्छी तरह से समझा के लिखना है। तो इफ़ यू कैन डू इट दिस वे देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन को आपको पहले तो क्वेश्चन पेपर पाने के बाद आपको अच्छी तरह से सिलेक्ट करना है, क्योंकि देर आर सो मेनी ऑप्शंस। सो यू मस्ट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस विच यू थिंक यू कैन राइट बेटर, एंड आफ्टर सिलेक्टिंग you start writing, and when you start writing, if there are two parts in a question, जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो इसमें आपको 2 पार्ट के लिए आप अलग अलग आंसर के अंदर ही पहले शुरुआत कीजिए एक इंट्रोडक्शन देते हुए कि कहानी क्या था, विलियम सिडनी पोर्टर कौन थे, यानी कि ओ हेनरी कौन थे, लेखक के बारे में थोड़ा सा मेंशन दीजिए। फिर ये आफ्टर 20 ईयर्स का स्टोरी का जो ओवरऑल जो फैक्ट है उसके बारे में एक शॉर्ट में डिस्कस कीजिए। फिर आप पैराग्राफ चेंज कीजिए और सब हेडिंग का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें आप पहले जिमी वेल्स एज ए कंपैशनेट फ्रेंड, इसको आप पहला सब हेडिंग बनाइए, इसको अंडरलाइन कीजिए स्केल और पेंसिल से, और एक अच्छी तरह से पैराग्राफ बना के लिखिए कि वो अपना फ्रेंडशिप किस तरह से निभा रहा है। तो कहानी में जिस तरह से दिखाया गया है उसके बारे में चर्चा कीजिए। फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए, सब हेडिंग का इस्तेमाल कीजिए, जिमी वेल्स एज ए डेडिकेटेड पुलिसमैन, ये आपका दूसरा सब हेडिंग बन सकता है। फिर आप उसके बारे में, ये जो पुलिसमैन उसका जो ड्यूटी वो किस तरह से निभाता है इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो ये एक आपका तीसरा पैराग्राफ बन जाएगा। फिर लास्ट में आके आप एक कंक्लूजन पैराग्राफ बनाइए, जिसमें आप इन जनरल बताइए कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिमी वेल्स एक तरफ जैसे कि वो एक कंपैशनेट फ्रेंड भी है और दूसरी तरफ वो अपना ड्यूटी को नहीं भूलता है और एक डेडिकेटेड पुलिसमैन के रूप में वो अपने आप को साबित करता है। तो इस तरह से अगर आप आंसर को
ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखोगे तो नेचुरली आउट ऑफ 20 आप कुछ नहीं तो 17-18 मार्क्स तो आप आराम से स्कोर कर लोगे। तो इस तरह से हर एक सवाल का आपको जवाब को तैयार करना है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और इसी तरह से आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स देखिए और उसमें से जो इम्पोर्टेंट लगे, जो आपको आसान लगे, जो आपके लिए इजी हो, उस टाइप का सवालों का जो आप जवाब घर में तैयार कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए और पढ़िए। और ये लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होने के बाद जो भी आपका अभी फिर फ्यूचर में क्लासेस होंगे या फिर आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आप अच्छी तरह से परफॉर्म कीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच।